Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Dr. Muhammad Zaman Ashraf. I welcome you all in Organic Chemistry Lab. Our previous experiment was column chromatography. We have discussed the theoretical principle and background of column chromatography. How we can get the efficient separation in column chromatography. We have detailed description in lecture 1 of column chromatography. Today we will discuss different types of adsorbents and diluents used in column chromatography. The stationary phase is a solid commonly known as adsorbent in case of column chromatography, and mobile phase is known as eluent, which is used to separate the components of a mixture in column chromatography. So let's start with the different types of adsorbents. We have a column. I have already explained the two different methods which are used to pack the column. So here we have glass wool to support the stationary phase or the adsorbent. Commonly width of this column is 1 to 3 centimeter. Height of this column is 20 to 30 centimeter, and this width and this height, it actually support 50 to 100 grams of stationary phase or adsorbent. We have already explained that column chromatography is a product isolation technique. तो इसमें आप जो है वो माइक्रोग्राम्स, मिलीग्राम से लेके किलोग्राम्स तक के सैंपल्स को जो है वो सेपरेट कर सकते हैं. अगर आपके कॉलम की विड्थ और हाइट इसकी प्रॉपर रेशो नहीं होगी, देन यू कैन नॉट गेट द एफिशिएंट सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर. अगर ये बहुत वाइड होगा देन देयर आर चांसेस ऑफ द ओवरलैपिंग ऑफ द बैंड्स, और अगर ये बहुत जो है वो नैरो होगा और इसकी हाइट जो है वो ज़्यादा होगी, देन प्रॉब्लम इज इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, बहुत स्लो प्रोसेस होगा और जो है वो आपको आवर्स जो है वो वेट करना पड़ेगा टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर. सो इट मीन्स कि आप जो है वो इसकी ये विड्थ एंड हाइट इस रेशो को सिलेक्ट करते हैं बेस्ड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ योर सॉल्यूट. सो adsorbent, the most widely used adsorbent in case of column chromatography is alumina. Silica gel is also used in case of column chromatography, and they have different pore size. For example, if you have silica gel, we normally grade this silica gel on different mesh size which have different pore size. So its pore size in column chromatography is 60 to 40 to 63 micrometers. So these two are commonly used adsorbents or the stationary phases to perform the column chromatography experiment. इनके अलावा भी जो है वो number of different stationary phases we can use to perform the column chromatographic separation. For example, we have inoline. Inoline is a polysaccharide, it is carbohydrate. We can use starch. We can use cellulose, we can use sucrose, we can use magnesium oxide, we can use calcium carbonate, a number of silyte and talc
they can also be used as stationary phases in case of column chromatography. The very important thing is you must know the stability of your components of the mixture which you have to separate in these stationary phases. ऐसा ना हो कि आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो इन स्टेशनरी फेजेस में स्टेबल ना हो, केमिकली रिएक्ट कर जाएं या किसी सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करें. तो दिस इज ए इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द सिलेक्शन ऑफ दिस stationary phase. So let's start. For example, if you pack your column with alumina, and we have alumina is actually Al2O3, and activated alumina आप जो है वो इसे हासिल कर सकते हैं विद फ्रॉम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. अगर आप उसे जो है वो हीट करें अप टू सर्टन 200-230 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो उससे जो है वो जैसे वाटर रिमूव होगा तो आपके पास एक्टिवेटेड एल्यूमिना आएगा विच इज़ Al2O3. इट्स स्ट्रक्चर इज alumina is highly polar stationary phase, and it is more polar as compared to silica gel, and the activated alumina, it has greater affinity with the water molecules. आप ये भी कह सकते हैं the activated alumina because it is highly polar, तो जो polar organic compounds होंगे are the components which are highly polar, they are strongly absorbed or held at this polar stationary phase. और जब आप इसका स्ट्रक्चर देखते हैं एक्टिवेटेड एल्यूमिना का, तो इनमें जो है वो ड्यू टू इट्स पोर साइज इट हैज़ टनल्स बिटवीन द पार्टिकल्स. तो वो जो टनल्स हैं दे एक्ट एक्चुअली जो है वो एक कॉलम का रोल प्ले कर रहे होते हैं जहाँ से ये सेपरेशन जो है वो हो रही होती है. Okay, so alumina is highly polar in nature, and when we perform the chromatographic separation on this alumina as a stationary phase, then we have first we collect the non-polar compounds, and then the components which are intermediate polarity, and at the end the more polar compounds are the components of the mixture which are highly polar, they are separated at the end. Secondly, we graded this alumina into different types which are used to separate different components. For example, we have basic alumina, its pH is 8.0 to 9.5 pH. So this basic alumina, it is not suitable for separation of all types of organic compounds. So this is suitable for the separation of amines, alcohols, carbohydrates, hydrocarbons, or dyes, basic dyes. So this basic alumina is suitable for the separation of these organic compounds, not suitable for the separation of aldehydes and ketones. The second type is acidic alumina. So this acidic alumina, it has pH 4.0 to 5.5. So this acidic alumina, it is suitable for the separation of phenolics, all those compounds which possess phenolic hydroxyl. अगर आप जो है वो नेचुरल प्रोडक्ट्स की बात करें, फिनोलिक्स में वी हैव number of hydroxyl groups they are present. Flavonoids, we know that, and coumarins, they also possess phenolic hydroxyl groups.
here if we have here. So a number of hydroxyl groups, they are present on these natural products, and they are colored compounds, and these phenolic compounds, they can be separated by using acidic alumina or carboxylic acid. Or we can separate amino acids. So it means acidic alumina, which has pH acidic, it can be used to separate phenolics, carboxylic acids, or phenolic dyes, or amino acids. The third type is neutral alumina, having pH so this neutral alumina is used to separate the components of the mixture if they contain aldehyde, ketones, esters, and quinones, etc. So this classification of alumina as neutral, acidic, and basic alumina is because of their different pH, and all these different grades of alumina, they are used for the separation of different types of organic compounds, because अगर आपके पास बेसिक एलुमिना होगा then it may catalyze some reaction, तो उसमें आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो इस एलुमिना के साथ या किसी मोबाइल फेस के साथ केमिकली रिएक्ट करेंगे, तो इन दिस वे यू कैन नॉट सेपरेट दीज कंपोनेंट्स, योर कंपोनेंट्स विद इन कॉलम दे आर डिकम्पोज्ड. In my previous theoretical demonstration of this column chromatography, वहाँ मैंने पैकिंग ऑफ कॉलम पे जहाँ बात की थी, तो पैकिंग आपकी जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए टू गेट एफिशिएंट सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स. ओके, तो इसके लिए आप जो है वो इसमें कुछ और एडिटिव्स भी ऐड कर सकते हैं जो इसको जो है वो कम्पैक्ट पैकिंग में हेल्प करें. और अगर सपोज आप इसकी जो है वो ग्रेविटी फ्लो से सेपरेशन कर रहे हैं, then maybe it is टाइम टेकन प्रोसेस, और जो है वो इसमें ज़्यादा टाइम लगे, तो इससे फिर हम जो है वो ऊपर से कुछ प्रेशर भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं टू अटेन एफिशिएंट सेपरेशन इन स्मॉलर टाइम. तो इससे फिर जो है वो फ्लैश कॉलम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं. जब हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि आप जो है वो सक्शन भी यहाँ से कर सकते हैं या ऊपर से आप प्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं. एंड सेकंड आर सिलेक्शन ऑफ इल्यूएंट, or selection of mobile phase. So we have discussed different types of solvents which can be used as mobile phase in case of thin layer chromatography also, and the same solvents they can be used to separate the components of the mixture in case of कॉलम क्रोमेटोग्राफी. लेकिन कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जो सॉल्वेंट है इसका सिर्फ एक पर्पस नहीं है टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर. आप जब कॉलम पैक कर रहे होते हैं वहाँ भी आप जो है वो मोबाइल फेस वही नॉन पोलर, अगर आपके पास जो है एन हेक्सेन है तो यूजुअली हम जो है वो एन हेक्सेन को जो है वो यूज़ करते हैं टू पैक दिस कॉलम. जब आप वेट पैकिंग जो है वो कर रहे होते हैं तो आप एन हेक्सेन को इसके ऊपर स्लोली एड्जॉर्ब करवा के इस कॉलम की जो है वो पैकिंग कर रहे होते हैं. सेकंड इसका जो फंक्शन है सॉल्वेंट का वो ये भी है कि जो आपके कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर हैं जिनको आपने सेपरेट करना है उसका भी आप सोल्यूशन उसी जो है वो सॉल्वेंट में बना के इसे कॉलम के ऊपर आप अप्लाई कर देते हैं. ठीक है. और थर्डली हमें पता है क्रोमेटोग्राफी में जब हम टीएलसी भी कर रहे थे या यहाँ कॉलम में भी इस तरह होता है कि आपके पास अगर जो है वो आपने प्रेपरेटिव थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की तो वहाँ आप सिलिका जेल को जब स्क्रैच करते थे तो फिर आप एक सॉल्वेंट ऐसा जो है वो सिलेक्ट करते थे विच इज़ इन विच सॉल्बिलिटी ऑफ अवर कंपोनेंट इज़ हाई,
तो इसलिए जो है वो डिफरेंट पर्पस इस सॉल्वेंट के या मोबाइल फेज के आप जो है वो इन केस ऑफ क्रोमेटोग्राफी आप अटेन करते हैं। सो इल्यूएंट्स आर द मोबाइल फेज, डिफरेंट मोबाइल फेजेस, दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोलैरिटी। तो आप जो है वो सपोज हमने वहाँ एसिटिक एसिड की बात की या हमने मेथनॉल एथेनॉल की बात हम जो है वो करते हैं, आर वी हैव एसीटोन, आर वी हैव सपोज वी हैव मेथनॉल और एथेनॉल और एसीटोन। तो ग्रेजुअली पोलैरिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है या इस साइड पे पोलैरिटी इंक्रीज हो रही है, और फिर एसीटोन से आप जो है वो इथाइल एसीटेट की तरफ जा सकते हैं या आप ईथर की तरफ जा सकते हैं, एंड देन यू हैव CCl4 और डाइक्लोरोमीथेन, और यू हैव सपोज हेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन। All these solvents they can be selected as a mobile phase or eluent। एक बात का आप ख्याल रखें कि जब आप मोबाइल फेज सेलेक्ट करें उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई ना हो, उसका वो लो बॉइलिंग हो, 60 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट हो, 80 हो, 50 हो, इस रेंज में उसका 90, इस रेंज में उसका बॉइलिंग पॉइंट हो, ताकि आप उससे जो है वो जो हाई बॉइलिंग कंपोनेंट्स हैं आप उनको ईजीली जो है वो सेपरेट कर सकें। सो इट मीन्स you have suppose a petroleum ether, commonly known as pet ether, so it have different boiling range 40 to 60 degrees Celsius, or you have hexane of cyclohexane, or you have benzene, or you have CCl4। so almost they are non-polar solvents। okay, तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी जब भी आप परफॉर्म करें तो आप स्टार्ट में ही पोलर सॉल्वेंट से स्टार्ट ना लें। क्यों? अगर आप पोलर सॉल्वेंट से इस कॉलम को सेपरेट करेंगे सो देयर आर चांसेस फॉर द ओवरलैपिंग ऑफ द बैंड्स, उसमें एफिशिएंट जो है वो सेपरेशन नहीं होगी। इसलिए आप उसे नॉन पोलर सॉल्वेंट से रन करें ताकि आपके जो कंपाउंड्स वहाँ नॉन पोलर हैं वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर जाए उसी स्टेशनरी फेज पे, एंड देन यू स्लोली इंक्रीज द पोलैरिटी ऑफ योर सॉल्वेंट। अगर आप जो है वो एट द स्टार्ट ही मिक्सचर ले लेंगे सॉल्वेंट्स का, एन हेक्सेन और एथेनॉल का, या एन हेक्सेन और एसीटोन का, या एसीटोन और एथेनॉल का, अगर आप इस तरह का कोई कम्बिनेशन बना लेंगे देन एफिशिएंट सेपरेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। इसलिए जो है वो आप स्लोली इसकी पोलैरिटी इंक्रीज कर सकते हैं। जब आप स्लोली इसकी पोलैरिटी इंक्रीज करते हैं व्हेन इन माय लेटर अपकमिंग लेक्चर ऑन HPLC, तो वहाँ हम देखेंगे कि जी अगर हम जो है वो सेम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं या मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं विद फिक्स्ड कंपोजिशन तो वो आइसोक्रेटिक इल्यूजन है, और अगर आपके पास जो है वो ग्रेजुअली आप इंक्रीज करते हैं तो उसे ग्रेडियंट इल्यूजन कहते हैं। और हमेशा जो है वो जो ग्रेडियंट इल्यूजन है इन केस ऑफ क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन उसको प्रेफर किया जाता है इंस्टेड ऑफ आइसोक्रेटिक इल्यूजन। ओके, सो ग्रेजुअली आपने पोलैरिटी इंक्रीज करनी है। सपोज मैं यहाँ एग्जांपल देता हूँ, आप इससे पहले जस्ट एन हेक्सेन से रन करते हैं। सो यू रन दिस कॉलम विद एन हेक्सेन, एंड देन आप उसमें जो है वो 10 ml एन हेक्सेन थी तो आप जो है वो इस रेशियो से मिक्स कर लें 1 ml कोई पोलर सॉल्वेंट एसीटोन ऐड कर, या आप क्लोरोफॉर्म ऐड कर लें, या आप जो है वो इसमें इथाइल एसीटेट। ग्रेजुअली यू इंक्रीज द पोलैरिटी। सो व्हेन यू इंक्रीज द पोलैरिटी ग्रेजुअली देन you will get the efficient separation of the components of a mixture। इसके बाद आपके पास जो है वो एसीटोन है, या अगर आप सपोज CCl4 को डाइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं, सो इट इज़ मोर पोलर एज कंपेयर टू CCl4। तो पोलैरिटी भी जब आपने इंक्रीज करनी है तो ग्रेजुअली आप पोलैरिटी इंक्रीज करें। ऐसा ना हो कि आप जो है वो एन हेक्सेन सेलेक्ट किया तो उसे छोड़ के आप डायरेक्ट मेथनॉल या एथेनॉल पे जो है वो चले जाएं। Another important factor from selection of eluents or solvent, ये भी आप जो है वो देखें कि आपने स्टेशनरी फेज कौन सी सिलेक्ट की है, एंड देन आप मोबाइल फोन कौन सी सिलेक्ट कर रहे हैं, और स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज उनका भी आपस में जो है वो कोई रिएक्शन ना हो। फॉर एग्जांपल इफ यू यूज्ड बेसिक एल्यूमिना and you used acetone as a mobile phase, then there may be this alumina. Here we have CH3. There are chances of some dimerization, and this is aldol condensation.
वी नो दैट दिस कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर आप इसे बेसिक एल्यूमिना के प्रेजेंस में जो करते हैं, देर आर चांसेस फॉर द डाइमराइजेशन ऑफ दिस एसीटोन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल टाइप कंडेंसेशन। एल्डोल टाइप प्रोडक्ट और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाएगा, जिससे बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनेट कंपाउंड जो है वो बनेंगे। इसी तरह इफ़ यू हैव सम एस्टर एज अ कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर, अगर आपके पास कुछ एस्टर्स हैं जिनको आपने सेपरेट करना है, सपोज योर कंपोनेंट इट कंटेन्स मिथाइल एस्टर, और अगर आप इसे इसी एल्यूमिना से सेपरेट कर रहे हैं एज अ स्टेशनरी फेज, और मोबाइल फेज आपने यूज़ की है CH2H5OH, देन देर इज अ ट्रांसस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कि आपकी ये जो अल्कोहल पार्ट है इस अल्कोहल पार्ट से जो है वो चेंज हो जाएगा, देन यू हैव RCOOC2H5। सो योर स्टार्टिंग मटेरियल जिस कंपोनेंट को आपने सेपरेट करना था वो मिथाइल एस्टर था, एंड इफ योर मोबाइल फेज इज एथेनॉल एंड योर स्टेशनरी फेज बेसिक एल्यूमिना, तो देर मस्ट बी अ ट्रांसस्टेरिफिकेशन रिएक्शन इन विच अल्कोहल पार्ट इज चेंज, और ये मिथाइल जो है इथाइल पार्ट में जो है वो चेंज हो जाएगा। सो दीज रिएक्शंस दे कैन बी अवॉइडेड व्हेन यू सेलेक्ट a suitable stationary phase and mobile phase for some specific components which you have to separate. So this is all about the stationary phase and the mobile phase, and how we can select the best stationary phase and mobile phase to perform this column chromatographic experiment. So this is all about to these two properties. In my upcoming lecture I will discuss in details the practical demonstration of this column chromatography. Thank you very much.